जय गुरुदेव अंकल। बाकी कर पाएंगे, बाकी कर पाएंगे। अच्छा वही करनी है। चालू है, स्टार्ट हो गया। ऐसा क्या डिफिकल्ट सॉन्ग किया आपने यार? लाइव फीड चेक, मेरे को कनेक्शन भेज दो। ये दूसरे फोन से小3MC。
अपना फोटो शूट करना चाहिए। अरे हटाया। गुरु जी जगह डाल रहे हो। नारायण आलो का ये चीज ये आई Hi everybody. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev, everybody. जय गुरुदेव. Greetings from South Africa. Greetings from Chennai. Greetings from Banaras. Greeting from Lagos. Greetings. Jai Gurudev. जय गुरुदेव. Greetings from Ahmedabad. क्या तो क्या? Gurudev from Kolkata. बंद कर दे, मैं भी बंद. Greetings from Lakhani family. Jai Gurudev. What? No. Jai Gurudev, everyone. Laptop पे नहीं ना, phone पे ये. Okay, so everybody needs to mute yourselves so that we don't have any disturbance while we are doing the bhajan and satsang. So a small request to everyone: Shaurya ji, Samsung Galaxy J3, Raksha ji, Neeta ji, Gangama, Deepa, Shania, Hawaii phone, please mute yourselves. And Vinod ji, I think you'll have to see if everybody is on mute. Otherwise, you know, it will be a mess if everybody is talking and I'm seeing.
So it's a request. सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए. There are still people who haven't muted themselves, so please do it as soon as possible so that we can begin immediately. Raksha ji, Samsung Galaxy J3, Gangama and Gigabytes and Gitu. Please mute as soon as possible so that we can begin, because there is a lot of disturbance when more people are. Okay, so welcome everyone, and I'll be singing few bhajans and then Uncle will. Yeah, it's perfect now. Am I audible? You can just wave your hand or give a thumbs up so that we can move forward. Okay, cool. Thank you. Cool. So let's begin. अच्छे काम की शुरुआत with a Ganesh bhajan. So you can sit comfortably and you can sing along as well. You can clap during the bhajans. Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Shubhakaryeshu Sarvada. Gananayaka, 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 Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Gananayaka. Gananayaka, 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 Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Mangala Murti Gananayaka, Mangalamurti Gananayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Gananayaka, 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 Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka. Mangalamurti Gananayaka, Mangalamurti Gananayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Shivanandana, Hey Shubhadayaka, Omkara Rupa Gananayaka, Omkara Rupa
गणनायका शिवनंदना हे शिवरायका शिवनंदना हे शिवरायका गणनायका गणनायका शिवनंदना हे शिवरायका शिवनंदना हे शिवरायका जय जय लंबोदरा 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 जय लंबोदरा जय जय लंबोदरा जय जय लंबोदरा जय जय लंबोदरा मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे ओ मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया रे ओ मोरया रे बापा मोरया रे मोरया रे बापा मोरया Sing one Guru Bhajan now. सबको वो मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, घर बैठे यू कैन अटेंड द सत्संग। कुछ लोग थोड़े टेंशन में लग रहे हैं कोरोना की वजह से, डोंट वरी, you keep a smile on your face and sing along. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु साक्षात् परब्रह्मा
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु जय जय गुरु गुरु जय जय गुरु शिवा जय जय सदा शिव शिव जय जय सदा शिव गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव नमः शिवाय नमः शिवाय शिव गुरु जय जय गुरु गुरु जय जय गुरु शिवा जय जय सदा शिव शिवा जय जय सदा शिव गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय गुरुदेव गुरु नमः शिवाय। Let's sing one bhajan from Gurbani now. सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सास पूरे पूरे का उपदेश पूरे गुर का उपदेश और ब्रह्म कर पार ब्रह्म कर सास सास
सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चमके सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चमके सांस सांस आसनेत त्यागोतराग आसनेत त्यागोतराग साध जना की धूल मनमाग साध जना की धूल मनमाग सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चमके सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चमके सांस सांस आप छोड़ विनती करो आप छोड़ विनती करो साध संग सागर तरो साध संग सागर तरो सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सांस सांस हर धन के भर भंडार हर धन के भंडार नानक गुर फूले नमस्कार नानक गुर नमस्कार सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंत सांस 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 सिमरो गोविंद मन अंतर के उतरे चिंत One very beautiful Shiva bhajan is there. It's called Shankar Sankat Harana. Keeping in mind the अभी जो चल रहा है पूरे दुनिया में, let's pray to Lord Shiva, Shankar Sankat Harana. ये जो संकट है दिल से चल हम सबसे दूर
कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए शंकर संकट हरना शिव कैलाशों के वासी धौलीदारों के राजा शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना शंकर संकट हरना अखंडानंदपूर्णाय शिष्टसंतापहारिणे चिदानन्दस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा
श्री गुरु चरण सरोज रज वंदन मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रकटे विभोर ये विमल मत मोर बंदो चरण सरोज गुरु मुझ मंगल आधार जय सेवक नर पूत है भव सागर से पार गुरु के सुमरण मात्र से नाशे विघ्न अनंत तेते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः पीताम्बरालं कुटुम्बभागम् अस्माभुन्नाथं विद्युत्सदा वेङ्कटाभिरामं श्रीदत्तयोगीशमनतोऽस्मि शङ्खचक्रगदापाणि द्वारकानीलाय चित्तूर्पिता मां शरणागताम् नारायण परा वेदा देवा नारायण मंदिरा नारायण परा लोका नारायण परा मथा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति। आज अपने गुरु जन्मदिन पे और हमारे आश्रम का स्थापना दिवस 27 मई को मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में मैं अपने गुरु को नमस्कार करके आशीर्वाद मांगता हूँ और अपने स्थान को भी हम सब लोग आशीर्वाद दें सब मिलकर के कि वो फूले और फले और हमारे परमात्मा का स्थान बना है। आज का सत्संग वैसे अचानक ही रखा गया, 1-2 दिन में बंदोबस्त करके, और फिर भी इस प्रवचन में 2-3 क्वेश्चन आंसर मेरे पास आए हैं जिसका जवाब लोगों ने मांगने की कोशिश की। 2-3 दिन पहले या 5 दिन पहले शायद एक क्लिप निकाली थी जिसमें ये था कि गुरु के चरणों में रहने के लिए या पूर्ण शरणागति के लिए मनुष्य को अपना स्वभाव बदलना पड़े। तो एक मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आया कि स्वभाव तो बदलना बहुत मुश्किल है। रावण का स्वभाव भी नहीं बदला गया, कंस का भी नहीं बदला गया, तो इंसान कहाँ से बदले? ये सत्य है। पर सच पूछो तो शरणागति बिना स्वभाव बदले नहीं होती, और स्वभाव बदलना ही सबसे मुश्किल काम। स्वभाव वही शिष्य बदल सकता है जिसको धर्म का ज्ञान है, और जिसको धर्म का ज्ञान गुरु द्वारा सिखाया गया हो वो ही अपने स्वभाव को बदल सकता है, वो भी इतना आसानी से नहीं। एक कहते हैं मनमुखी, एक कहते हैं गुरुमुखी। इसका मतलब क्या है? मुख जो है जिसका संसार में होता है उसको मनमुखी कहते हैं, और ये मुंह जब गुरु की तरफ मुड़ जाता है तो उसको गुरुमुखी कहते हैं। गुरु की तरफ मुंह मोड़ना सबसे कठिन काम है, क्योंकि सबसे पहले तो आंख से आंख मिला करके बात करनी पड़ेगी, और आंख से आंख मिला करके तब तक बात नहीं कर सकता इंसान जब तक उसमें धर्म का ज्ञान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गलती तो करेगा ही करेगा, छोड़ेगा नहीं भगवान। धर्म किसको कहा जाता है? धर्म के वैसे तो बहुत लक्षण हैं, पर धर्म के मुख्य 5 लक्षण हैं मुख्य, और ये धर्म किसी रिलीजन से कंसर्न्ड नहीं है। ये धर्म परमात्मा का धर्म है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, जैनी है, कोई भी है। ये किसी भी धर्म में ये लागू होगा, इसको हम निकाल नहीं सकते अपने अंदर से, इसको मानना ही पड़ेगा, तभी आदमी के स्वभावों में फर्क आता है।
इसमें सबसे पहला जो होता है धैर्य का धर्म होता है। धैर्य रख करके अपने गुरु और भगवान पे विश्वास रख करके हम ये सोच करके चले कि आज नहीं कल वो हमारा भला कर ही देगा। पहले तो ये धैर्य रखना पड़ता है, तो ही मनुष्य गुरुमुखी बन सकता है। क्या उसको 20 साल लगे, 50 साल लगे, 60 साल लगे, कई बार तो 5-5 जन्म भी निकल जाते हैं, पर इतना धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। क्योंकि धैर्य जो है धर्म का सबसे ऊंचा लक्षण है, और ये कोई रखना नहीं चाहता आज के समय में। पर जब धैर्य का धर्म ही नहीं है किसी में, तो फिर परमात्मा की अनुभूतियों को कैसे वो देख पाएगा। दूसरा धर्म उसने बताया शौच, पवित्रता, बाहर की और अंदर की, ये भी रखनी बड़ी मुश्किल है। अच्छे अच्छे संत भी भटक जाते हैं। ये सबसे मुश्किल काम है और कठिन काम है, क्योंकि धर्म को धारण करना बहुत मुश्किल है, और जब तक ये धारण नहीं किया जाए तब तक एक आदमी मानव नहीं है, और उसमें मानवता के गुण आएंगे ही नहीं। और परमात्मा ने मानव को चाहा है, परमात्मा ने कभी उसको नहीं चाहा जो मानव नहीं है। पहले तो हमारे अंदर मानवता आनी चाहिए। जैसे भगवान ने हमें इंसान बना करके पैदा किया है, पहले वो धर्म आने चाहिए, वो लक्षण आने चाहिए हमारे अंदर, वो क्वालिटीज आनी चाहिए, और वो क्वालिटी धर्म से आती है, और वो गुरु के ज्ञान से आती है, गुरु के दिए हुए अच्छे ज्ञान से प्राप्त होती है, गुरु के साथ रहने से प्राप्त होती है, गुरु के हर आदेश मानने से प्राप्त होती है, गुरु को परमात्मा मानने से ही प्राप्त होती है वो चीज, नहीं तो नहीं होगी। अगर गुरु को हमने परमात्मा नहीं माना तो ये गुण नहीं आएगा तुम्हारे अंदर, ये लिख लो। गुरु कैसा भी हो, अपने गुरु को जिसने परमात्मा नहीं माना है उसके अंदर धर्म के गुण आ ही नहीं सकते, और ना ही वो दुनिया का कल्याण कर सकता है। ये सत्य है। ये पवित्रताएं अंदर और बाहर की अलग अलग चलती हैं। जिसमें चालाकियां भरी हुई होती हैं वो अंदर और बाहर की पवित्रताएं नहीं रख पाता, इसमें भटक जाता है कभी मोह माया, क्योंकि परमात्मा को ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, और जो परमात्मा को चीज अच्छी नहीं लगती वो धर्म का संभाल कर ही नहीं पाएगा, और जब धर्म का संभाल नहीं होगा तो मानवता रहेगी नहीं। तीसरा गुण है सत्य का। सत्य किसे कहते हैं? सत्य सच बोलने को नहीं कहते, ये तो युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला। सत्य कहते हैं सच को समझने की जगह, सच समझना चाहिए। हमारी आर्ग्यूमेंट्स ये होती है, हम अपने आप को सच मानते हैं, दूसरे की मुसीबत को नहीं समझते। दूसरे की मुसीबत हर तरीके से सेम ही है। आज एक आदमी को पैसे की मुसीबत है, एक आदमी को इज्जत की मुसीबत है, एक आदमी को मान की मुसीबत है, एक आदमी को अपने बच्चे की मुसीबत है, एक आदमी को अपनी बीवी की मुसीबत है। जब तक उस सत्य के डेप्थ के अंदर तुम नहीं जाओगे उस सत्य को समझने में, तब तक तुम उसका कोई भी निवारण नहीं ढूंढ सकते। क्योंकि मैंने अपने गुरु को देखा, कई बार वो माँ बाप को हटा करके सिर्फ बच्चे की सुनते थे। मैंने एक दिन अपने गुरु से पूछा, मैंने कहा गुरु जी सी माँ बाप की तो सुन लूं। कहता माँ बाप इस बच्चे की सुनते नहीं, पहले मैं तो सुन लूं, क्योंकि मैं भी तो माँ बाप हूं। और वाकई उसने 6 साल के बच्चे की पूरी कहानी सुनी आधा घंटा बैठ के, क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान चाहिए गुरु को, कि सत्य क्या है। माँ बाप तो जो बोलेंगे सब बोलेंगे, वो तो अपनी बोलेंगे जो भी बोलेंगे, पर इस बच्चे की भी तो मैं सुनूं ये क्या क्या रहा है। चौथा जो है आदमी में धर्म जो है वो है क्षमा का। हम अपने साथ जजमेंट चाहते हैं, हमारे साथ जो हुआ है उसकी जजमेंट की जाए,
और दूसरे के साथ नेगोशिएशन चाहते हैं। ये इंसानी नेचर है। खुद के साथ, हमारे साथ जब भी कोई मुसीबत होगी हमें जजमेंट चाहिए, और दूसरे के साथ नेगोशिएशन चाहिए। भाई तुम्हारे साथ नेगोशिएशन क्यों नहीं हो? जब तुम दूसरे के साथ नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो तो अपने साथ भी नेगोशिएशन करो। तो वहां आदमी में वो क्षमा की शक्ति गुम हो जाती है। जो तुम गलती करते हो, दूसरा तुमसे गलती करता है, या तुम दूसरे के साथ गलती करते हो, वहां तुम नेगोशिएट करना चाहते हो। और पांचवा जो गुण है मुख्य, जो धर्म के अंदर है, वो है दया। ये सब संतों में होती है, इंसानों में बहुत कम होती है। और ये सबसे मुख्य पिलर है धर्म का, मानवता का। ये बहुत मुश्किल आती है आदमी के लिए, ये आ ही नहीं सकती, क्योंकि 75% लोग तो नॉन वेजिटेरियन है। तो दया तो वहीं गुम हो गई। अगर दया हो तो दूसरे की आत्मा का भी पता हो, तो दया है ही नहीं हमारे अंदर। तो जब दया ही नहीं है तो परमात्मा को क्या समझेंगे, और मानव कहां से बनेगा? तो मानवता के जितने गुण हैं वो धर्म से आते हैं। पर धर्म का अर्थ क्या है? ये तो पांचों गुण हैं उसके। धर्म का अर्थ है जब इनको हम अपने अंदर धारण करेंगे तो ये धर्म बनेगा, तो ये धर्म में कन्वर्ट होएगा। जैसे हम जब शादी करते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो हम यज्ञ के आगे, अग्नि के आगे उसको अपनी पत्नी मानते हैं, और दिल से मानते हैं, और मरने दम तक मानते हैं। इतना मानते हैं कि वो पत्नी को हक भी मिल जाता है हमारे पितृ खिलाने का, हमारे बुजुर्गों को खाना देने का, जबकि वो दूसरे घर से आई है। धर्म की इतनी बड़ी महिमा है। उसको पूरा हक मिल जाता है हमारी प्रॉपर्टी का, उसका पूरा हक मिल जाता है हमारे पैसे का, उसको पूरा हक मिल जाता है हमारे ऊपर रोब मारने का, क्योंकि वो धर्म के द्वारा लाई गई है, और हमने धर्म के द्वारा उसे एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो धर्म पत्नी है। उसी तरीके से भगवान के ये धर्म गुरु के सामने सम्मुख होकर के एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, और उस पर चलना पड़ता है, तो मानवता के लक्षण आते हैं। वरना मानवता के लक्षण नहीं आएंगे। और ये बात निश्चित है कि जब तक ये मानवता के लक्षण नहीं आएंगे तब तक हम गुरुमुखी नहीं बन सकते। हम गुरु के पास जाते क्यों है? क्योंकि गुरु के पास ये पांचों चीजें हैं। क्षमा करने की शक्ति है, दया है, सत्य को देखने की शक्ति है। हम जाते क्यों गुरुओं के पास? और जब ये शक्तियां इंसान के अंदर समाती है, ये किसकी शक्तियां? ये भगवान की शक्तियां। तो भगवान स्वयं आकर के समा जाता है इंसान के अंदर। हालांकि ये पांच बताइए, हालांकि है तो काफी। उसके बाद निरअहंकार है, आदमी निरअहंकार ही रहे, अहंकार नहीं करे, और बहुत चीजें इसमें, पर मुख्य ये पांच ही हैं जो मेरे गुरु ने मुझे समझाई। चलो तुमसे होती नहीं है, कोशिश तो कर सकता है, कोशिश तो कर सकता है। कोशिश करने से ये धर्म आस्ते आस्ते अंदर आएंगे। मानवता, जिस दिन मानवता हमारे अंदर उतर गई ना, उस दिन परमात्मा आकर के हमें पूछेगा खुद, तेरे को क्या चाहिए? हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कृष्ण इतनों के पीछे भागा, राम इतने जंगलों में संतों को जाकर के मिल के आया। क्यों? क्योंकि उनमें ये धर्म थे। खुद गया उनकी कुटिया में मिलने, और उनके चरण छू करके आया, उनके चरण धो करके आया भगवान का। शबरी की कुटिया में खुद गया, शबरी नहीं गई राम के पास।
पर ये लक्षण तो बनाने ही पड़ेंगे, आज निकल बनेंगे, समय पा करके तो बनाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं। तीसरा, इस बात को मैं आज कहता हूं कि जब ये धर्म अपने अंदर आ जाता है, गुरुमुखी बन जाता है, तो गुरु क्या करता है? गुरु इसमें क्या ऐड करता है? गुरु इसमें ज्ञान ऐड कर देता है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि गुरु तत्व है क्या, जिसको आप बार बार कहते हो कि गुरु तत्व है, ये परमात्मा तत्व है, ये आत्म तत्व है। हमारी आत्मा को आत्मा तत्व कहा जाता है, गुरु को गुरु परमात्मा गुरु तत्व कहा जाता है, परमात्मा को परमात्मा तत्व कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको मैं सिंपल दे देता हूं कि दो गाय खड़ी हैं, दोनों की आत्मा गुरु है, यूं समझो। घास जो है वो परमात्मा है, यूं समझ लो। जब वो गाय उस घास को खाती है तो खाने के बाद क्या देती है? दूध। दूध के बाद बनती है दही, दही के बाद बनती है लस्सी, लस्सी के बाद निकलता है मक्खन, मक्खन के बाद निकलता है देसी घी। अब दूध भी तत्व है, दही भी तत्व है, लस्सी भी तत्व है, मक्खन भी तत्व है, पर देसी घी पर तत्व है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं निकलता। तो गाय जब वो घास खाती है तो गुरु अपने अंदर इतनी प्रोसेस कर चुका होता है भगवान की, वो सिर्फ शिष्य को एक गिलास दूध का पिला देता है बस, और शिष्य को कहता है मेहनत तो मैंने की है पर रस तू खा, जा मैं तेरे को दे देता हूं ये रस का। कई गुरु जो है दही दे देते हैं, कई गुरु लस्सी दे देते हैं, कई गुरु जो है मक्खन दे देंगे, कई गुरु देसी घी दे देंगे। देसी घी देने वाले गुरु बहुत कम है, प्रॉब्लम वहां है। देसी घी देने वाला गुरु वही होएगा जिसको परमात्मा ने भेजा होगा इस धरती पे। पर आप ये नहीं कह सकते हो जिसने दूध दिया वो कम वाला गुरु है ना। इस वक्त तुम्हारे को दूध की जरूरत है, उतना ही देगा भगवान, इसीलिए उसने ऐसा गुरु भेजा तुम्हें। जब तुम्हें दही की जरूरत होगी दही वाला गुरु भेज देगा, जब तुम्हें लस्सी की जरूरत होगी लस्सी वाला गुरु भेज देगा। तो एक्चुअल में देखा जाए जो घास का तत्व है या घास का जो सैचुरेशन पॉइंट है या घास का जो मेन मिठाई मलाई है वो देसी घी है, जो एक आम आदमी घास में से नहीं निकाल सकता, उसके लिए गाय रूपी गुरु चाहिए जो उसको निचोड़ करके उसमें से निकाल करके तुम्हारे को देसी घी खिलाए कि भाई देख इस गाय, देख ये घास घास नहीं मत समझना, इस घास में और बहुत गुण है, इस घास में बेअंत गुण है, और भी बहुत गुण है इस घास में। इसमें से फिर जो पेशाब निकलेगा उसमें से गाय में से, उसमें से बीमारी कम होती है। जो गोबर निकलता है उसको जो है लेप लगाते हैं तो उससे जीव जंतु नहीं आते घर में। गाय की हर चीज काम आती है। हड्डियों में से फास्फोरस निकाल करके पीस करके तुम खेत में डाल दो, तुम खेती बढ़ती है। चमड़ा निकाल करके चमड़ा बना दो, हर चीज काम आती है गाय की, सींग भी काम आते हैं। फिर अकेली एक घास उस गाय को चलाती है। तो यूं समझो घास जो है वो परतत्व नारायण है, गाय जो है वो गुरु है, और जो हम शिष्य खाएंगे वो मलाई खाएंगे, क्योंकि मेहनत तो सारी गुरु ने की, मलाई शिष्य खाता है। ये है भी सही बात, माँ बाप मेहनत करते हैं, मलाई बेटे खाते हैं, ये आपकी बात थोड़ी है।
तो सत्य तो यही है आदमी के अंदर कि गुरु की सेवा के बगैर गुरु की क्वालिटीज ज्ञात करनी मुश्किल हो जाती है, लेनी मुश्किल हो जाती है। और जब वो क्वालिटीज गाय के साथ रहने से तुम्हें पता लगेगी कि ये क्वालिटीज क्या है भगवान की, और उसी को ही ज्ञान कहते हैं। ज्ञान है क्या? जो करना चाहिए वो ज्ञान है, जो नहीं करना चाहिए वो ज्ञान है। इतना ही फर्क है ज्ञान और अज्ञान में। माँ बाप को चाटा नहीं मारना चाहिए, सबको पता है, ये ज्ञान तो सबको पता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, जो ज्ञान गुरु देता है वो दुनिया का नहीं देता, वो परमात्मा का देता है, कि परमात्मा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। गुरु ज्ञान वो देता है कि परमात्मा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। बस इतना ही कोई समझ जाए तो गुरु की महत्वता समझ आ जाती है। यही सत्य है और इसके अलावा सत्य कुछ नहीं है इस संसार के अंदर। इसलिए गुरु की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त होएगा, और जब ज्ञान प्राप्त होएगा तो धर्म का ज्ञान प्राप्त होएगा, उससे मानवता होगी, मानवता से हम आगे परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। Now some people obviously they are looking for English translation to it. I will try to put it on WhatsApp and send it up. But in shortcut, I can tell you that to become a perfect human being, you have to have a knowledge of dharma. Basically, धर्म को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट यू कॉल, एक वर्ड कहते हैं इसको, मुझे भूल गया अभी, पर वो जब धर्म आए, जब आदमी के अंदर, when धर्म goes inside you, it goes through a guru, and only by serving a guru you can get that dharma in you. But guru will only accept and give you that dharma when you sit in front of him in a way what he wants from you. It's not that what you want from him. You have to forget that part. What you want from your guru, you have to keep that aside. What guru wants from you, you have to work on that and start working on that. And that will take you to the God. मैंने अपने गुरु से एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा भगवान के पास पहुंचने का रास्ता क्या है? तो मेरे गुरु ने मुझे शॉर्टकट्स में समझाया था। कहता है गुरु जो है ज्ञान प्राप्त कराता है, वो ज्ञान से तुम्हें परमात्मा के अंदर रस जागता है। क्या जागता है? रस जागता है। तुम्हें परमात्मा के अंदर उसका रस जागेगा। जब उसके अंदर रस जागेगा तो तुम्हारे को परमात्मा जो है एक दिन, आज नहीं कल, वो दिखाई देने लग जाएगा। सर्वप्रथम दिखाई नहीं देगा, सर्वप्रथम महसूस होएगा। मैं कहा कैसे महसूस होएगा मेरे गुरुदेव? कहता ऐसे महसूस होएगा, जो तुम चाहोगे वो चीजें होती चली जाएंगी। तो समझो परमात्मा तुम्हारे साथ है। जो तुम मांगोगे अपने मन के अंदर, वो चीज आस्ते 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 होती चली जाएगी। तो उस दिन समझ लेना परमात्मा तुम्हारे साथ है। जब वो होती चली जाए तो तुम उस परमात्मा को हर बात पे शुक्रिया करते जाना, और जो गुरु मंत्र जो गुरु ने दिया है उसको तुम नित्य जपते जाना। आज नहीं कल परमात्मा तुम्हें अपने पास बुला ही लेगा। यही है सही रास्ता। तो मैंने कहा गुरु और भगवान हम कैसे माने? हम इकट्ठा माने, अलग माने, उसको अलग माने, तुम्हें अलग माने, कैसे करें? हम तो परेशान हो जाएंगे।
तो उन्होंने मुझे बोला 3 तरीके हैं, या तो सिर्फ गुरु को मानो, परमात्मा को मत मानो तो भी चलेगा, परमात्मा उसको एक्सेप्ट करता है, या दोनों को बराबर मानो, या तीसरा जो मंत्र दिया है उसको परमात्मा मानो। इन तीनों में से कोई भी चीज को अपना लो, तुम पार पड़ जाओगे। बस इतना ही बहुत है आज के लिए। प्रणाम गोविंद भाई, गुरु महाराज की जय हो। टू ऑल माय गुरु भाईज एंड गुरु भाई और गुरु सिस्टर्स को सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। एंड सबसे पहले तो थैंक यू तो आपको कहना बनता है, क्योंकि आपके जरिए ही हम गुरु क्या है वो भी जाने। अभी भी ये नहीं कहूँगा कि गुरु कौन है क्या है वो जान पाए, बट एटलीस्ट फिजिकल फॉर्म में और हर तरह से अगर हम जुड़ पाए हैं वो जरिया आप ही रहे हैं। तो सर्वप्रथम जरिया को नमस्कार, आपको नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सत्संग देंगे। मेरे को थोड़ा सा टाइम कम दे रहा है, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हाँ, तो एक गाना मैं गा रहा हूँ गोविंद भाई, जो हमारे को सबको। जैसे तू घर पे चिल्लाता है वैसे चिल्ला। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है? आ रही है अभी। ओ सॉरी। सर्वप्रथम मैं ये बोल रहा था कि आपके थ्रू ही हमारे को गुरुजी मिले हैं, आपके थ्रू ही हम ये स्पिरिचुअल लाइफ क्या है ये जाना है। तो सर्वप्रथम आपको नमस्कार और आपको बधाई, ढेर ढेर बधाई गुरुजी के बर्थडे के लिए। एंड इस चीज का तो खैर कभी हम आपको रिपे नहीं कर सकते। जो आपने किया है हमारे लिए, जो आपने गाइड करने की कोशिश की है, उस पे हम कितने खरा, मैं बाकी का नहीं बोलूंगा, मैं कितना खरा उतर पाया हूँ ये तो मैं नहीं जानता, परसेंटेज भी नहीं मैं बोलूंगा, बट फिर भी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट गिव एनीथिंग मोर देन अ थैंक यू टू यू। नहीं, बस गुरु की कृपा सब पे बनी है। मेरा एक ही काम रहा है शुरू से, अपने गुरु का रास्ता दिखाना। चाहे तुम जिस भी गुरु को मानते हो, तुम्हारे गुरु का भी कोई ऐसा नहीं है। मेरे मन में तो गुरु पदवी एक ही है, चाहे उस पर कोई भी गुरु बैठा हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने गुरु तत्व को जाना है, शरीर को नहीं जाना है, तो इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और जो गुरु तत्व को जान लेता है उसको दूसरे के शरीर से कोई लेना देना नहीं होता है। एक फिल्मी गाना है जो आपके परमिशन के साथ में ये गाना गाना चाहूंगा। हाँ, एक फिल्मी गाना है जो मैं ये भजन के तौर पे आपको पेश कर रहा हूँ। और ये आपका वो रिलेशन जो है गुरुजी के साथ जो रहा होगा, वो तो आप तो बचपन से उनके साथ जुड़े हैं, हम तो आपको बाद में जाने। तो ये गाना अगर आप आंख बंद करके अगर सुनोगे तो आपको गुरुजी की जो यादें हैं और आपके साथ जो गुरु की रिलेशन रही होगी उसको मन में रखते हुए मैं ये गाना गा रहा हूँ आपके लिए। जरूर गाओ। एक मिनट, एक सेकेंड। नहीं याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
So yeah, no problem. Thank you. और कुछ अभी एक करना है। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख लूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख लूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए, कहने को अब वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। थैंक यू। गाना सुनता था बचपन में जब गुरुजी के साथ होता था, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं और ना, और बंद करता हूँ, एक सेकेंड। मेरे को गाना उस टाइम पे गुरुजी के साथ लगता था। हाँ, एक अनीता पिक्चर आई थी, उसके अंदर एक गाना था, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। अच्छा, तो मैं इस गाने को बहुत सुनता था। अच्छा, हाँ, मैं देखूं जिस और सखीरी सामने मेरे सांवरिया। अच्छा, अच्छा, ये तक भजन ही है देखा जाए तो। हाँ, के लिए ये गाना है, और अगर गाना ये तुम ध्यान से सुनोगे तो ये भजन है एक्चुअली। जी 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 जी। नहीं, मैं इस गाने को आपके लिए ही मतलब आपको विजुअलाइज करती, क्योंकि आपका तो इतना मतलब लंबा रिश्ता रहा है गुरुजी के साथ। मैं शरीर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं उतना भी उठा हुआ नहीं हूँ कि मैं शरीर को भूल जाऊं। मैं उस आपके लेवल का तो कभी हो ही नहीं सकता, तो मैं शरीर से ही रिलेट करता हूँ आज की तारीख में भी। मैं कन्फेस करता हूँ, उसमें मेरे को कोई बोलने की शर्म नहीं है। लेवल किसी का ऊंचा नीचा नहीं होता है, गुरु जो है सबके लेवल बढ़ाता ही रहता है, ठीक है, लगाता है पर बढ़ाता है। नहीं, वो एक सत्संग में कहा है, मेरी गाड़ी छकड़ा है और पहुंचा सबको दूंगा। नहीं, वो तो गुरुजी ने भी गद्दी में मेरे को बोला है, तू शक तो करता है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आदमी को। हाँ नहीं, वो गुरुजी को तो गद्दी में मेरे को ये तो उन्होंने बोला है। दे दिया तो बहुत है, तो टाइम लगेगा, ठीक है, ये जिंदगी के झमेले हैं, चलते रहेंगे, इसको तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, मैं तो उस हिसाब से के साथ भी रहे, राधा के साथ भी रहे झमेले, राक्षसों के साथ भी रहे, देवताओं के साथ भी रहे, कि अंत तो किसी का था नहीं, इसलिए सोचने का ही नहीं। मेरा तो डबल ब्लेसिंग है, उन्होंने गद्दी में, ये भी गद्दी में बैठे हुए बोला कि मैं तेरे को वहां तक साथ दूंगा। आपने तो बोला ही है, वो तो लेगोस के गद्दी में बोला मैं तेरे साथ वहां तक जाऊंगा। अब मैं राक्षस
सक्सेस हूँ, चाहे अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, वो मैं नहीं देखना चाहता। वो आपने बोला है, मैं आपने बोला तो बोला है, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। अब आपको मैं वो भजन बताता हूँ जो आपको पसंद है। हाँ। इसका म्यूजिक मैं 1 सेकेंड यहाँ से ले रहा हूँ। जगजीत के साथ ही गा रहा हूँ। हाँ। राम जय राम, जय जय राम, जय राम। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। राम जय राम, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण गलमाला, नैन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करू अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जही गाव वही श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भय प्रकट श्रीकंता। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोबासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जही प्रकार सुति प्रेम लहे। जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावही, हरि पद पावही, तेहि न परहि पवकूपा। जय जय राम, जय राम, 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 जय जय राम, जय राम,
जय जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। अंकल जय गुरुदेव, गौतम बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। गुरुजी की जन्मदिन की लाख लाख बधाइयाँ। अंकल आपसे एक क्वेश्चन था, ये धर्म के रिलेटेड ही था जो आपने आज सत्संग दिया। कृपया आप प्लीज इसका जवाब देंगे आप। आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि कर्म में, धर्म में और कर्तव्य में फर्क क्या है। हाँ, और ये आदमी, औरत और एक महासंत, कर्म और कर्तव्य में बदलने के लिए मुझे आधा पौना घंटा चाहिए होगा। 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर है ये कम से कम, क्योंकि ये मुझे गीता से अंदर से लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने अभी जवाब नहीं दिया। मैं नेक्स्ट वाले में तुम्हें जवाब दे दूंगा, ठीक है? ओके, ठीक है अंकल। क्योंकि ये बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि कर्म का ही अर्थ कम से कम 8 पहलू से है। 3 पहलू भी है, 8 पहलू भी है, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको फिर कर्तव्य से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, और फिर इसको धर्म में लाना पड़ेगा, तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया है। अच्छा, ठीक है अंकल जी। क्योंकि आज गुरुजी का जन्मदिन था, इसलिए मैंने गुरु तत्वों पे बोलना ज्यादा अच्छा समझा। अंकल आप अपने और गुरुजी की कोई ऐसी किस्से के बारे में बताएंगे हमको, जो आपको सबसे दिल से ज्यादा करीब है आपके और गुरुजी के साथ? क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। कोई एक चीज, कोई एक किस्सा जो आपके और गुरुजी के बीच में, जो आपको सबसे ज्यादा दिल के नजदीक है आपके। मैं पब्लिकली अनाउंस नहीं करना चाहता वो, पर हिंट दे सकता हूँ। हिंट दे सकता हूँ कि जब मैंने गुरु के अंदर उस परमात्मा को देखा था पहली बार, और जो उसने मेरे सर पे हाथ रखा था, बस वो ही मेरे लिए सबसे जिंदगी का महत्व है। और सच्ची बात कहूँ तो आज तक मुझे वो हाथ ही बचाए गए, नहीं तो ये, और वो हाथ भी बड़ा सॉलिड हाथ था, कोई छोटा मोटा हाथ नहीं रखा था मेरे सर पे। कई वचन दे करके रखा था वो हाथ मेरे साथ, और वो मैंने वचन आज तक किसी को बताया भी नहीं है, आज तक नहीं बताया 40 साल में मेरे। ये 86 की बात है, 86 की बात है। उन्होंने मुझे कुछ वचन दे करके मेरे सर पे हाथ रखा था, और ये मैंने वचन आज तक किसी से नहीं कहे, और ना ही कभी कहूंगा। ये मेरे मरते दम तक ही जाएंगे। उन वचनों की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ, नहीं तो लोग मुझे कब का मार चुके होते। उसका हाथ अगर इतना भारी नहीं मेरे सर पे होता, तो लोग मुझे पता नहीं कहां से कहां ले जाते। तो उसका हाथ मेरे को बचा गया, ये मेरे को बात पक्की है। और वो हाथ उन्होंने किसी पे नहीं रखा, ये मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि गोविंद तेरे अलावा मैंने किसी पे रखा ही नहीं है। ये बोला उन्होंने, खुल के बोला। तो वो सबसे, मतलब मेरी यादगिरी की वो सबसे बड़ी दिन थी। सबसे बड़ा याद वही है मेरी जिंदगी में, वो मतलब छपा हुआ है मेरे हृदय में, और वो मेरे साथ ही जाएगा। बस इतना ही कह सकता हूँ, ये सबसे बड़ा दिन था मेरी जिंदगी में। टाइम भी अंकिल आपने 1986 की बात है। थैंक यू। और मेरे को टाइम भी याद है। तो गुरु का हाथ एक बार इस सर पे पड़ जाए, वो वाला हाथ, कौन सा हाथ, वैसे तो पड़ते ही रहते हाथ, भगवान वाला हाथ, वो बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो वो जिस दिन पड़ जाए तो फिर पड़ ही जाए, फिर तो उसके आगे किसी की चलती नहीं, उसके आगे किसी की नहीं चलती। Okay, so one more very happy Guru Bhajan I will sing.
रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी, मस्ती का जाम आपने, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु 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 ओ मेरे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु 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 ओ मेरे सतगुरु, 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 जय गुरुदेव गुरु ओम नमो नारायणाय, जय गुरुदेव गुरु ओम नमो नारायणाय, ओम नारायणाय, ओम नमो नमो 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 सत्यानंद ओम जय सद्गुरु सत्यानंद, ओम जय सद्गुरु सत्यानंद, ओम जय सद्गुरु सत्यानंद, ओम जय सद्गुरु, 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 जय गुरुदेव गुरु ओम नमो नारायणाय, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु,
वाहे गुरु 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 We'll sing one Vitthal bhajan which जब तक मैं वो भजन गाता नहीं हूँ मुझे दरबार से जाने नहीं देते. So I'll sing this bhajan. विठ्ठला हरी विठ्ठला 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 जय जय विठ्ठले हरि नारायण हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण हरि नारायण भजो नारायण हरि नारायण भजो नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण नारायण सत्यनारायण गुरुनारायण जय विठ्ठले हरि नारायण हरि नारायण भजो नारायण हरि नारायण भजो नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण भजो नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण सत्यनारायण सत्यनारायण गुरुनारायण सत्यनारायण गुरुनारायण विठ्ठले हरि नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर विठ्ठले हरि नारायण विठ्ठल 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 जय जय विठ्ठले हरि नारायण
विठ्ठले हरि नारायण जय जय विठ्ठले हरि नारायण. Very, very beautiful Krishna bhajan. We'll sing that. I think we'll end the session with this. मेरे सर पर रख बनवारी अपने दोनों ये हाथ, मेरे सर पर रख बनवारी अपने ये दोनों हाथ. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए. ओ देने वाले श्याम प्रभु तो धन दौलत भी क्या मांगे, मांगे भी तो श्याम प्रभु से सत शोहरत क्या मांगे. मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे कृपा की बरसात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. श्याम तेरे चरणों की डोले धन दौलत से महंगी, एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी. मेरे दिल की यही तमन्ना, मेरे दिल की यही तमन्ना, कर सेवा तेरी दिन रात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. There is one more very beautiful paragraph in this song which I realized very recently. I sing that. झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर दे तू. बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ ले तू, बिन माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ दे. मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात. देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मेरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं.
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदर केशवं कृष्ण दामोदर रामनारायण जानकी वल्लभं रामनारायण जानकी वल्लभं रामनारायण जानकी वल्लभं रामनारायण जानकी वल्लभं. We will be having I think we'll cut the cake now, Vinodji and uncle. Yeah, okay. विनोद किधर है? Stop. Okay, there's one special song which is sung during birthdays when we are doing satsangs. So we'll sing that song. सागर में एक लहर उठी आपके नाम की सागर में एक लहर उठी आपके नाम की आपको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की आपको मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना तू है सुंदर फूल संसार की तू है सुंदर फूल संसार की Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Dear Guruji Muted all submit unmuted. Happy birthday, Guruji. Thanks, uncle, for the lovely satsang. Happy birthday. Happy birthday, we debited his account no, for that. Debit his account no, उन्हें टेलर में अगेंस्ट डेबिट करना होने के
just Okay, Pandit. In my class, before actually I completely gave no objection to PBL. She wanted everything to because I want that, I want that. Same thing it is. मेरी I have no. वीना Oh, शरण ने आका सदा करूं थी जैसी माउस हिलाना नहीं आ रहते हैं इधर इधर हाथ जोड़ने का इमोजी। अरे इधर हाथ जोड़ने सब लोग हाथ बंद है। ये इधर इधर तो मैं मथे बंद है। ये रहला ही ना to come. Tell me. in satsang Huh? The host only has done it.